بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت مہربانی. میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم. میں اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے ایوان تجارت پی ٹی آئی کے جتنے میرے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میرے جنبے کے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اگی بازار کے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پورے اغرور تنول سے جتنے میرے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ لوگوں نے 4 چاند لگا دیے. سربلند بھائی کا بھی شکریہ، عطا اللہ بھائی کا بھی شکریہ. یہ دونوں آپس میں بھائیوں کی طرح مل کے اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ان دونوں کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں اپنی عوام کی خدمت کرنا، سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے. کل میرا الیکشن ہوا تھا، میرے خلاف اپنا سربلند بھائی کھڑے ہوئے تھے، عبید الرحمان صاحب کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، یقیناً ایک مطلب مثالی کام ہوگی کے لیے، تو اس لیے انہوں نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو، اور میں ان کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک عزت دار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یہی نشانی ہوتی ہے. زیادہ اگی کی باتیں ہوں گی کیونکہ آج اگی میں تقریب ہو رہی ہے. جب ہمیں کامیابی ملی 2018 میں تو کچھ باتیں تو سربلند بھائی نے کی ہیں، لیکن میں اس پہ ذرا تھوڑا غور کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ ہمارے جو فنڈز تھے، یہ فنڈز جو ہے، یہ بیوٹیفیکیشن کے جو فنڈز ہیں ہمارے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے چند اضلاع کے لیے رکھے تھے. اس میں کچھ اور ضلع بھی تھے، تو شروع کے اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا مانسیرا، لیکن بعد میں ہمارے اور بھائیوں نے کہا کہ نہیں جی، مانسیرے کا جو آپ نے فنڈ دیا ہوا ہے اس میں ہمارے اضلاع کو بھی آپ انکلوڈ کریں. اس میں زیادتی ہوگی اگر میں اپنے باقی ایم پی ایز کا بھائیوں کا نام نہ لوں. بابر سلیم خان ہو گیا، میں ہو گیا، احمد شاہ صاحب، ہم تینوں مل کے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں ہمارے لیے جو آپ نے بیوٹیفیکیشن کا فنڈ رکھا ہوا ہے تو اس میں پلیز باقاعدہ ضلعوں کو انکلوڈ نہ کریں. ہاں ان کو بھی آپ دیں اپنی طرف سے فنڈ، لیکن ہمارا جو یہ فنڈ ہے یہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ مانسیرا میں لگنا چاہیے. اور الحمدللہ ہماری بات منظور ہوئی اور اس سے آج یہ لائٹیں لگ رہی ہیں. یہ آج الحمدللہ اگی کا جو ہے سارے لائٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد شیرگڑھ کا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر نیکسٹ جو اس کے بعد آئے گا وہ دربند روڈ کا، دربند کا جو بازار ہے انشاءاللہ تعالی، وہاں پہ لائٹس لگنی شروع ہو جائیں گی. یہ ٹینڈر ہوئے ہوئے ہیں، کانٹریکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری آج تک تو ملاقات بھی نہیں ہوئی کانٹریکٹر صاحب کے ساتھ، تو اس نے جو یہاں پہ کل پریس کانفرنس ہوا اور کہا گیا اس میں ایک وہ جو ہے کیا نام ہے جو بھاگا ہوا ہے جی یہاں سے نوسر باز کہہ سکتا ہوں اس کو، وہ جو ہے کل اس نے بڑی غلط باتیں کی ہمارے صادق صاحب کے بارے میں. ناظم صادق صاحب ایک بڑے خاندانی، شریف النفس اور ایک سفید پوش انسان ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام میرے سامنے اور میرے اقتدار کے دوران کبھی انہوں نے کسی ٹھیکیدار کے تھرو یا کسی سے جا کے مطلب کہ کوئی ڈیلنگ وغیرہ نہیں کی. اس چیز کی میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں. ہمارے کوئی ٹھیکے نہیں بکتے، جس طرح کہ نثار بھائی نے بتایا، حبیب بھائی نے بڑی اس کی کلیئرفیکیشن دی. ہمارے جو ٹھیکے ہوتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں آن لائن، اس میں آن لائن ہوتے ہیں. اس میں نہ میں کسی کا دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور اس کا کسی کوئی کانٹریکٹر کا نام دے سکتا ہے. یہ بڑا صاف شفاف سسٹم ہے پی ٹی آئی کا. یہ پاک پی ڈبلیو ڈی کی طرح نہیں ہے کہ دفتر کھول لیا ابٹاباد میں، وہاں پہ اپنے سارے ٹھیکیداروں کو جمع کر کے تو ان میں ٹھیکے تقسیم کر کے آدھے کمیشن خود آدھے. آپ کا تو ابھی کمیشن آپ کا تو ابھی شروع ہوا ہے. نیب کے میں آپ کے کیسے چل رہے ہیں؟ 30 ارب روپے کا آپ نے ڈاکہ مارا ہوا ہے، 30 ارب روپے کا. اور جو لوگ اس کو آج ہیرو کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہے. مجھے ان لوگوں پہ اس لیے افسوس ہے کہ ایک بندہ اگر بھیڑ میں ہمارا جیب کاٹ کے اس میں اگر 5-6 ہزار روپے ہوں تو پھر اب سارے مل کے اس کو اتنا مارتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے یہاں پہ لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جس بندے نے 30 ارب روپے چوری کیے ہیں، آج اس کو اگر کوئی ہیرو کہہ رہا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اس کا تو انجام اس کو جیب کترے سے بھی برا ہونا چاہیے. جس بندے نے 30 ارب روپے آپ کی چوری کی ہوئی، اور یہ آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں ملنگ کا بیٹا ہوں، میں کبھی کہتا ہے میں کس
मेरा बाप पता नहीं कोई ज़रात में बैठा हुआ होता था, तुम्हारा बाप ज़रात में बैठा होता था, मलंग होता था, तो 22 करोड़ रुपए तुमने अभी तक लगा दिए। मानसर में टाउनशिप में तुम्हारी कोठी बन रही है, वो 22 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद में तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, लाहौर में तुम्हारी प्रॉपर्टीज है। हमें पता है तुम्हें गर्दा महदो, तुम बड़े खुद उस चीज को भी फख्र से कहते हो कि मैं गर्दा महदों का सरदार हूँ। उस दिन अपने वो स्पीच में कहता है हमारे अगलोर तौर में तो उसको बगैरती समझी जाती है, तुम्हें अगर इस चीज से खुशी होती है तो पता नहीं तुम कहां से ताल्लुक रखते हो। तो तुम बात करने से पहले जरा अपने गिरबान में देखो कि तुम क्या चीज हो, तुम अपने आप को देखो, फिर किसी दूसरी पे उंगली उठाओ। तुम चोर हो, तुम्हारा ससुराल पूरा चोर है, पूरा टब्बर चोर है, और आपके केसेस पनामा के केसेस चल रहे हैं, नैब के केसेस चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को आपने खाया हुआ है। सब कुछ मतलब है कि जो है अवाम के सामने, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, आप लोगों के सामने नंगे हुए हैं। और अल्लाह पाक जो है इंशाअल्लाह ताला इस अवाम के पैसे जिसने लूटे हुए हैं, खुदामद गरीब मुझसे निकालेगा, मेरा रब निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। झूठे मलंग बने हुए 5 करोड़ रुपए की गाड़ी में आके कहते हैं मैं जी मलंग का बेटा हूं। कैसे तुम मलंग के बेटे हो? तुम अगर ऐसे हो तो अल्लाह ऐसी तौफीक हर एक मलंग के बेटे को यहाँ पे दे, हर एक बंदे को मतलब है कि जो है मलंग का बेटा बने, क्या जो है और मतलब कुछ समझ नहीं आती। वो मुझे लगता है अपने होश में ही नहीं होता जब ये बातें कर रहा होता है। तो खैर वहां पे लगा हुआ था, बोल रहा था, मैं उस पर बोलना ही नहीं चाहता था, यकीन माने, लेकिन वो मजबूर कर देते हैं। उसको एक ही तकलीफ है, उसको भी और बाकी सियासियों को भी। एक और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस दिन मानसरा में, मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह पाक का कि मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं वो कोई इज्जतदार लोग नहीं कर रहे, वो कोई शरीफ लोग नहीं कर रहे, वो टिम्बर माफिया के लोग कर रहे हैं, वो पाउडर माफिया के लोग कर रहे हैं, वो फ्रॉडिये कर रहे हैं जो कि लोगों के जमीनों पे कब्जे करते हैं जाली कागजात बना के, वो सियासी बोने कर रहे हैं जो कि तसब का बीज फैलाना चाहते हैं, वो लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और उनको तकलीफ क्या है कि फरीद ये तरक्याती काम कर रहा है, यहाँ पे कठाई रोड फरीद ने बनाया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइट फरीद ने लगवाई है, हर विलेज काउंसिल में फरीद के काम चल रहे हैं। अपने भाइयों के लिए 24 घंटे फरीद का पूरा खानदान अपने घर में हाजिर होता है। इसलिए ये तकलीफ उनको होती है कि यार हम तो जो है इसका मुकाबला भी अभी अगले इलेक्शन में कब करेंगे। मैं उनको कहता हूँ तुम जो है अभी सब्र करो, इलेक्शन में जो है तुम लोगों को मैंने तुम्हारी जमानतें जब्त की थी, तुम अगली दफा हो इंशाअल्लाह ताला, और उस वक्त तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है इंशाअल्लाह ताला। ये कामों का जो वो एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, तरक्याती कामों का सिलसिला, ये जारी रहेगा। मैं किसी की प्रोपेगेंडा में किसी की साजिशों में आके और इसको छोड़ के और अपना मतलब अटेंशन डाइवर्ट नहीं करूंगा। मेरा ये मेन मकसद है। जैसे आपने बात की, अपना भाई ने निसार भाई ने बात की कि, और अपना गदीर साहब भाई ने शायद बात की कि ये लाइटें आगे तक ऐसी ब्यूटिफिकेशन के फंड से। और हाँ जी, मैं सराहना चाहूँगा टीएमओ साहब को भी कि उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अपनी टीम सबको, उनकी सब लियाकत साहब हो गई, इंजीनियर साहब हो गए, इन सब ने मिल के और कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, और इनके लिए भी दाद होनी चाहिए जी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अभी हमारे पास इंशाअल्लाह जब आएंगे फंड्स जो ब्यूटिफिकेशन के, ये लाइट्स जो हैं वो मलुका के आखिर तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उस साइड से शमदाड़ा की तरफ भी हम लाइट्स लगाएंगे, दलबोड़ी की तरफ भी हम लाइट्स लगाएंगे, बजना की तरफ भी हम लाइट, जहाँ जहाँ पे बाजार हैं उन सब में इंशाअल्लाह ताला इस ब्यूटिफिकेशन के फंड से हम लाइट्स लगाएंगे, और मॉन्यूमेंट्स भी बनाएंगे और गेट्स बनाएंगे। बाकी अवान तजारत के भाई सरबरान भाई यहाँ पे बैठे हुए, अताउल्लाह भाई हैं, अपना सारे मिल के हम मशवरे से, जिस तरह मैंने पहले आपसे मशवरा किया था, सब ने मिलके एक मशवरा किया था, तो आपसे मिलके एक मशवरा करेंगे कि यार आगे इस पैसे के साथ मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्यूटिफिकेशन का पैसा जो है वो भी लगेगा। बाकी शेरगढ़ रोड का काम लगा हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मोर टू बी ज़ियारत सियासत की नज़र हुआ था काफ़ी अरसों से, जिस तरह के कठाई रोड उस पर काम लगा हुआ है, कहीं और चंबेड़ी रोड हो गया, बाकी ये अपना इसका हम जल्द इफ्तिताह करेंगे, ये गली से ऊपर जी, हाँ डबीमार रोड हो गया, छिजड़ी रोड हो गया, इन रोडों का भी हम जल्द इंशाअल्लाह ताला इफ्तिताह करेंगे। बेलिया का कलवर्ट है उसका भी
टेंडर लग गया, 28 को खुलने वाला है। ऊपर खपल रोड है, उसके बीच में 2.5 किलोमीटर जो है उसका भी टेंडर लग गया है और 28 को खुलने वाला है। उसका भी जैसे ही वो ठेकेदार को मिलता है ठेका तो उसका भी हम इफ्तिताह कर लेंगे। और मैं आपको जिशकोट हो गया, जिशकोट रोड के लिए भी पैसे रखे हैं। बाकी काफ़ी रोड है, मैं एक पूरी लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका पूरे एक पैम्फलेट बनाएंगे, पैम्फलेट बना के अपने मुखालिफिन को दिखाएंगे ये काम किया फरीद ने। और ऑन द रिकॉर्ड कल ये भी बात हुई कि जी कटाई का रोड के लिए मजदूरी, ओ भाई यार छोड़ो आप, मैं भी क्या अभी आपको बार बार मुझे भी तुम्हारा नाम लेते हुए बुरा लगता है, कोई कैसे जड़े का पुत्र होता तो फिर भी कोई गलत ही। तो ये जो है यहाँ पे जाके CNW से आप रिकॉर्ड मांग लें, आप जाके पब्लिक हेल्थ वालों से रिकॉर्ड मांग लें, TMO साहब यहाँ पे बैठे हुए इनसे जाके रिकॉर्ड आप मांग लें, किसने क्या काम किया हुआ है आपके सामने आ जाएगा। मैं ऐसा बेगैरत नहीं हूँ कि मैं किसी और के काम को अपना काम कहूँ, ये गैरतमंद लोगों का काम नहीं होता। किसी और ने काम किया है मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि ये ठीक किया, ये उसने किया है। जिस तरह आप लोगों को बिजली का काम था, मैं पूरी उगी के अवाम को, अमान तजारत को, जितने भी यहाँ पे तंजीमें बैठी हुई हैं, आप सबको का मैं अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पेशावर से काम मैंने चलाया, लेकिन अपनी PTI वालों को, अपनी तंजीम को, अपने अवान तजारत को मैंने कहा था कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट दबा के करना है। MPA प्रोटेस्ट में शरीक अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होता, लेकिन ये अवाम सारी यहाँ पे शरीक हुई, उन्होंने किया। पेशावर पे जो काम था उनको मैंने जाके दिखाया कि ये मेरी अवाम है, रोडों पे निकली हुई है और ये आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसला हल हो गया, जिसकी वजाहत आपको सरबंद भाई ने भी की। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों, मैं आखिर में आप सबका दोबारा से ऐवान तजारत का, PTI का, अपने उगी के अवाम का, तनौल अगरोर के अवाम का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हुए और एक नेक काम का हमने आगाज़ किया। अल्लाह हमें तौफीक दे कि आगे भी आपकी खिदमत करें और बाकी भी आगे वाले आने वाले टाइम्स में हम आपके लिए और भी फंड्स लेके आएँ और भी तरक्याती काम लेके आएँ और उसका हम इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मिल के, सब मिल के एक गुलदस्ते की तरह इनका इफ्तिताह करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी।